عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مائی سیلف توفیق شیخ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ چلیے بچوں، آج ہم چھٹی کلاس کے جنرل سائنس کا چوتھا سبق، جس کا نام ہے قدرتی آفات کے دوران حسن انتظام کا دوسرا پارٹ دیکھتے ہیں بچوں اس سبق کے پہلے پارٹ میں ہم نے آفات کی اور اس کے وجہ سے ہونے والے نقصان کی معلومات حاصل کی ہے بچوں۔ آفتیں اور ان کی اثرات کی معلومات ہم پہلے پارٹ میں حاصل کر چکے ہیں بچوں۔ چلیے آج ہم آفات کا حسن انتظام کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ لوگوں کی شمولیت اور آفت کے حسن انتظام میں بہت قریبی تعلق ہے۔ آفت کو ٹالنا، آفت کا سامان کرنے کے لیے منصوبہ بنانا اور اس کے لیے صلاحیت حاصل کرنا یعنی آفت کا حسن انتظام۔ آفت کا حسن انتظام یعنی کیا بچوں؟ آفت کو ٹالنا، آفت کا سامنا کرنے کے لیے منصوبہ بنانا اور اس کے لیے صلاحیت حاصل کرنا یعنی آفت کا حسن انتظام۔ آیا سمجھ میں بچوں؟ قدرتی یا انسان کی پیدا کردہ آفت ٹالنے کے تدابیر کے لیے فوری منصوبے اور حسن انتظام کی ضرورت ہوتی ہے بچوں۔ قدرتی یا انسانی پیدا کردہ جو آفتیں ہیں انہیں ٹالنے کی تدبیر کے لیے فوری منصوبے اور حسن انتظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئے سمجھے بچوں؟ اب اس میں کون کیا کرتا ہے؟ 2005 میں قومی تدارک آفات کا محکمہ قائم کیا گیا۔ 2005 میں کیا کیا گیا؟ قومی تدارک آفات کا محکمہ قائم کیا گیا۔ آفات کے حسن انتظام کے تحت منصوبہ بنانے کا کام یہ ادارہ کرتا ہے۔ اب اس میں ہم کیا کریں بچوں؟ تو ایک بات ذہن میں رکھیے بچوں، آفت کے زمانے میں ایک دوسرے کی مدد و تعاون ہم تمام کی اخلاقی ذمہ داری ہے بچوں۔ جو یہ آفت کا دور ہوتا ہے، آفت کا زمانہ ہوتا ہے بچوں، اس میں ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، اور ایک دوسروں کی مدد کر ایک دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے بچوں۔ یہ ہمارا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اب اس میں چند آفات کے دوران حسن انتظام کے لیے رابطہ قائم کرنے کے لیے کچھ فون نمبر دیے گئے ہیں بچوں۔ یہ فون نمبر بہت امپورٹنٹ ہے بچوں۔ یہ فون نمبر آپ کے پاس لکھے ہوئے ہونے چاہیے بچوں۔ فون نمبر کون کون سے ہیں؟ پولیس کو اگر بلانا ہے تو 100 نمبر 100۔ فائر بریگیڈ، کہیں پر آگ لگی ہے تو اس کو بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کو بلایا جاتا ہے، اس کے لیے جو نمبر ہے وہ ہے 101 101۔ کہیں کچھ حادثہ ہو گیا، ایمبولنس کی ضرورت ہے بچوں، تو اس کے لیے نمبر ہے 102۔ یہ نمبر ضروری ہے بچوں، لکھ کر رکھو۔ اور تدارک آفات کا محکمہ جو ہم نے اوپر پڑھا تھا نا، اس کا نمبر ہے 108۔ یہ بہت امپورٹنٹ نمبر ہے بچوں۔ کہیں آپ کے اطراف میں کوئی حادثات ہوئے یا آفت کے دوران حسن انتظام کے لیے یہ نمبر بہت کام آتے ہیں۔ پولیس ہو، فائر بریگیڈ ہو یا ایمبولنس کو بلانا ہو تو یہ نمبر
काम आते हैं बच्चों। अब आफत के दौरान एहतियाती तदाबीर, हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, तो वो देखते हैं बच्चों कि आफत के आने से कब्ल या इसके दौरान हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए। उसमें पहली है रेडियो, टीवी और टीवी पर ख़बरों पर मुसलसल नज़र रखना चाहिए बच्चों कि आफत के मुतालिक रेडियो और टीवी पर क्या ख़बरें आ रही हैं, उस पर नज़र रखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है बैटरी से चलने वाले रेडियो, मोबाइल का इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है बच्चों के लाइट वगैरह कुछ आफतों के दौरान लाइट वगैरह न होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे आंधी वगैरह आफतें हैं जिसमें लाइट नहीं रहती है, तो ऐसे वक्त में बैटरी से चलने वाला रेडियो और मोबाइल का इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात के ज़रिए दी हुई जो इतलात है उसे गौर से सुने। जो फॉरकास्ट डिपार्टमेंट जो होता है, महकमा मौसमियात जिसे कहते हैं, उसके ज़रिए दी जाने वाली इतलात को हमें गौर से सुनना चाहिए बच्चों। और एक वेबसाइट है, वो है www.imd.gov.in, इसका इस्तेमाल करें बच्चों। और इसके अलावा चंद ऐसी आफतें हैं जैसे कि बादलों के फटने या शदीद बारिश की वजह से पहाड़ों की ढलानों पर चट्टानें खिसकती है बच्चों। तो ऐसे वक्त में सहारा हासिल करने के लिए आप पहाड़ के दामन में न रुके बच्चों। क्या होता है कि शदीद बारिश की वजह से या बादल के फटने की वजह से चट्टानें खिसकने का डर होता है। अगर कोई पहाड़ के दामन में अगर सहारा लेते हैं तो चट्टान खिसकर उनके ऊपर उनको मलबे में धंसने का अंदेशा होता है। इसलिए शदीद बारिश के दौरान या बादल फटने के दौरान कभी भी पहाड़ के दामन में सहारा नहीं लेना चाहिए बच्चों। ठीक है, खुले मैदान में अगर हो सके तो सहारा लें, पहाड़ के दामन में नहीं। चलिए अगला देखते हैं। नदी में सैलाब आने पर किनारे के करीब मकान में न रुकें। अगर समझिए नदी में सैलाब आने वाला है, बहुत बारिश हुई है, तो उसके किनारे पर मकान में न रुकें, बल्कि किसी दूसरे महफूज मकाम पर पनाह बना लें। क्योंकि हमने ऊपर पढ़े हैं बच्चों कि शदीद बारिश के बाद पानी ज़्यादा जमा हो गया तो सैलाब आने का ख़तरा होता है। इसलिए नदी के किनारे मकान में न रुके, दूसरे जगह पर पनाह बना लें। मुमकिन हो तो ऊंचाई पर क़याम कर लें। बहते हुए पानी में न उतरे और न आगे गाड़ी बढ़ाएं। कि बहते हुए पानी में बच्चों कुछ अंदाज़ा नहीं आता, इसलिए बहते हुए पानी में उतरना भी नहीं चाहिए और गाड़ी आगे भी नहीं बढ़ानी चाहिए बच्चों। अब अगला पॉइंट है, ज़लज़ले में रास्ते टूट जाते हैं, ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं। अगर इस पर रेलगाड़ियाँ की पटरियाँ वगैरह खड़ी हैं तो रेल की पटरियाँ उखड़ जाती हैं। इसलिए एक मकाम से दूसरे मकाम को जाते हुए ये इत्मीनान कर लें कि आगे का रास्ता ठीक है। ये चेक करना ज़रूरी है बच्चों। अब अगला 8वां पॉइंट है, इमदादी मरकज़ियात कैंप से मदद हासिल करें ताकि दवाएं, ग़िज़ा के पैकेट, पानी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद वगैरह जल्द हासिल हो। अगला 9वां पॉइंट है, आग से बचने के लिए मदरसे, अस्पताल, रेलवे स्टेशन जैसे मकामात पर आतिश फ़रो आला का इस्तेमाल करें।
वो फायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना बच्चों, यहाँ देखिए लाल कलर का सिलेंडर दिखाया गया है, उसका इस्तेमाल करें आग बुझाने के लिए। अब कुछ यहाँ देखिए, यहाँ पर ये इमदादी मरकज़ कैंप की फ़ोटो दी गई है। यहाँ पर आग को बुझाने के लिए आले का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ ये मेज़ के नीचे एक शख्स बैठा हुआ है। जब अचानक घर में है आप और ज़मीन वगैरह हिलने लगे, जलजल आ जाए, अगर भागना पॉसिबल नहीं है बाहर, तो आप मेज़ के नीचे वगैरह सहारा ले सकते हैं। वैसे जैसे हो घर से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए बच्चों जलजल आने पर। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो मेज़ के नीचे वगैरह बैठ जाएं ताकि आपको किसी चीज़ का मार ना लगे। रेडियो सुनते रहें, ख़बरें सुनते रहें, और वेबसाइट www.imd.gov.in पर मालूमात हासिल करें, न्यूज़ देखते रहें। इन सब एहतियाती तदाबीर से हमें कम से कम नुकसान होगा बच्चों आफ़त के दौरान। आफ़त के दौरान हमें ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। आया समझ में बच्चों? बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबक के लिहाज से भी और हमारी ज़ाती ज़िंदगी में भी बच्चों। आया समझ में? तो चलिए बच्चों, इस पार्ट में इतना ही बस। अगली जो मालूमात है इब्तदाई तिब्बी इमदाद, हम इस सबक के तीसरे पार्ट में देखते हैं बच्चों। ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई में दिल लगाए रखिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।